Jai Gurudev, dear students. Welcome again in this EVS class. Children, you know we have already started this chapter, our organ system. And children, under this, I have explained you the various organ systems. Means out of these 8 organ systems, we have completed already. Means I have explained you about the skeletal system, muscular system, digestive system and excretory system in detail. But still circulatory, respiratory, nervous and reproductive systems are left. So let's proceed with our today's class, because you know these systems are important to maintain the body function of any organism. Okay, so that's why these all systems are important to study. So after explaining you skeletal system and muscular system, then digestive system, in the last class I explained you this one, and excretory system, which remove the waste material from our body with the help of kidneys. Then now for today we will come to the circulatory system. Means this is the next system of our body and it is also very important. Children, do you know about the heart? Heart means जिसको हम दिल बोलते हैं. Okay, heart is the main organ of this system, because heart works day and night, and heart pumps day and night to distribute the blood all over our body. So children, this is about the circulatory system. Circulatory system में main क्या होता है? ये heart. ओके और हार्ट जो होता है उसके साथ ये 2 टाइप की पाइप जैसी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो अटैच होती हैं. एक तो होती है रेड कलर में जो इसमें दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड आर्टरीज, एंड ये जो ब्लू कलर की आपको ये दिखाई गई है, ये भी हमारी पूरी बॉडी में ही इसकी ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और रेड जो है उसकी भी ब्रांचेस हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. तो ये एक हार्ट और इसके साथ इसकी जो ब्लड सप्लाई करने वाली पाइप जैसी ब्लड वेसल्स बोलते हैं हम इसको. ये देखिए यहाँ पे लेबल किया हुआ है, दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. और इन ब्लड वेसल्स में ये जो ब्लू वाली है इसको हम बोलते हैं वेन्स, एंड रेड को क्या बोलते हैं? आर्टरीज. ओके, सो लेट्स रीड चिल्ड्रन व्हाट दे हैव गिवन हियर. लेट्स रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेक अ कार्डबोर्ड पाइप ऑफ शॉर्ट लेंथ, कीप इट ऑन the left side of your friend's chest. See that there are no sounds around that may disturb you. Listen to the sound coming from inside the pipe carefully. You must be hearing a lub-dub sound. These are sounds coming right from his or her heart. अब चिल्ड्रन इस पैराग्राफ में उन्होंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि एक कार्डबोर्ड की आप छोटी सी लेंथ वाली एक पाइप ले लीजिए, और कोई भी पाइप जैसी अगर आपके घर में छोटे साइज की हो और वो आप ले सकते हो इस वर्क के लिए, और उसको आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड की चेस्ट के लेफ्ट साइड पे आपको रखना है. ओके, और उस पाइप को जब आप
अपने फ्रेंड के लेफ्ट साइड पे, उनकी चेस्ट पे आप रखोगे, तो वहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि आजू बाजू में कोई भी साउंड आपको डिस्टर्ब ना कर रही हो, कोई भी आवाज़ ना आ रही हो, मतलब शांत आपकी सराउंडिंग हो, जिससे कि आप उनके जो चेस्ट कैविटी से साउंड प्रोड्यूस होती है, जब हमारा हार्ट वर्क करता है तो उसकी जो साउंड होती है वो आप सुन सकते हो उस पाइप के थ्रू। ओके, सो उस पाइप के एक एंड को आप अपने फ्रेंड के लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे लगाओगे, और दूसरा साइड जो है वो अपने ईयर में जब आप लगाओगे तो आपको लब डब टाइप की साउंड सुनाई देगी। ओके, सो ये साउंड क्या होती है? ये साउंड आपके फ्रेंड की है, जिसका भी आप चेक कर रहे हो, उनके ये हार्ट की साउंड है। ओके, उनके दिल से जो ये बीट करने की साउंड आती है, पंप करने की साउंड आती है, वो होती है हार्ट की साउंड। सो नेक्स्ट इज आवर ऑर्गन्स, heart, blood and blood vessels together runs our circulatory system. So children, हमारे circulatory system के organs कौन कौन से होते हैं, उनके parts कौन कौन से हैं? First is heart. I have told you through the diagram also. And blood, because blood flows through the arteries and veins, means blood vessels. And blood vessels, those pipe like structures in which blood flows through them, they together runs our circulatory system. So the heart works all the time, even when we are asleep. Means they are explaining here that our heart works all the time, even when you are sleeping. At that time also your heart continuously works. Okay, so it pumps blood to different parts of the body through the blood vessels. As blood flows through the body, it carries digested food and oxygen to all its parts and takes away the waste materials like carbon dioxide. So children, in this paragraph what they are trying to explain us, like this is our heart, और जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे हार्ट से, हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इससे, और इनके अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ये सारे मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं. एंड आफ्टर दैट what will happen when our heart pumps? ये जो हार्ट होता है ये पंप करता है. ओके, एंड when it pumps, at that time it pushes the blood to these red color vessels, जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज. ओके, और ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें ये हार्ट जो है वो ब्लड को सप्लाई करता है. और इसकी जो ब्रांचेस आप देख रहे हो, कुछ ब्रांचेस हमारे ब्रेन तक जाती हैं, हमारे हेड रीजन में जा रही हैं, फिर कुछ ब्रांचेस उसकी हमारी आर्म्स में, देन हमारे लंग्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं उनमें भी जाती हैं, फिर हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स में भी उसकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं. ओके, मीन्स आवर फुल बॉडी gets blood from these arteries or these blood vessels,
रेड कलर ब्लड वेसल्स। और ये जो रेड वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें जो ब्लड होता है चिल्ड्रन, उसके थ्रू हमारा जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं डाइजेशन के बाद, वो सारा फूड भी इस ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में, अपर एंड लोअर। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, वो जो ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, वो भी हमारे इस ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, हमारे हर सेल के पास वो इस ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। ओके, एक तो फंक्शन ये डिस्ट्रीब्यूशन का करता है हमारा ब्लड। सेकेंड फंक्शन विच इट परफॉर्म्स, that to collect the waste material in the form of carbon dioxide. Second thing जो ब्लड जो है वो ये वर्क भी साथ साथ में ही करता है कि वो जो हमारे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, उनमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो भी सारे वेस्ट कलेक्ट करके, और वो ये जो होती है ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल है, ब्लू वाली, इसमें वो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड वापस लेके और फिर हार्ट के पास आता है, और हार्ट उसको भी पंप करता है, और वो ब्लड जो होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वो लेके चला जाता है हमारे लंग्स के पास। ओके, वो सिस्टम हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लंग्स के पास कैसे वर्क होता है। तो इसके बाद आप देखिए इसमें नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। अब चिल्ड्रन, मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं वो क्या कहलाएंगी, वेन्स। ये जो ब्लू कलर की हैं, क्योंकि ये सारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड कलेक्ट करके लेके आती हैं और ये हार्ट की तरफ आती हैं, हार्ट में आके उस ब्लड को हार्ट को देती हैं। ओके, बट इसके जस्ट ऑपोजिट आप देखते हो कि ये जो रेड वाली ब्लड वेसल है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। ये जो आर्टरीज होती हैं ये हार्ट से ब्लड लेके और हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती हैं। अवे मीन्स दूर लेके जाती हैं, बाकी पूरी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली समझना है। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि these red color blood vessels which are called arteries, they carry blood from the heart and carry away from the heart to all the body parts. Okay, but this blue color blood vessel which is called veins, and they collect waste material containing blood from all the body parts and it carries blood towards the heart. Okay, so both are just oppositely working. So see what they have written. The blood vessels that carry blood towards the heart are called veins, and the blood vessels that carry oxygen rich blood away from the heart are called arteries. मीन्स ये जो रेड वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। वो मीन्स ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे बॉडी पार्ट्स में। हमारे सारे सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
and these arteries distribute those oxygen and food materials to our all body parts, upper and lower. So children, this is all about your circulatory system. Now let's come on the next system, which is called respiratory system. So take a deep breath inside. आप लंबी सांस को अंदर लीजिए. You will feel your chest expanding. चिल्ड्रन, जब आप बहुत गहरी सांस लेते हैं तो आप ये फील करते हो कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो गई है. एक्सपैंड मीन्स कि बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है. आपके जो चेस्ट की प्लेस होती है वो ज़्यादा फैल जाती है. ओके, लीव योर ब्रेथ ग्रेजुअली एंड सी how your chest comes back to its normal form. अब आप देखिए, पहले आपने लंबी सांस ली, उसके बाद आपने देखा कि आप जब आप लंबी सांस ले लेते हो तो आप ये फील करते हो कि आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो गई है. ओके, एक्सपैंड होना मीन्स फैल जाना या चौड़ा होना, बढ़ जाना किसी चीज का. देन उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं और इस चीज को जब आप कंटिन्यू करके देखते हो तो आप ये फील करते हो कि आपकी चेस्ट जो होती है वो ऊपर नीचे शिफ्ट होती है जब आप सांस लेते हो. ओके, आप लोग खुद भी ये चीज फील करके देख सकते हो बच्चों कि जब हम सांस लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं, ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, तो हम अपनी चेस्ट कैविटी को देख सकते हैं कि उसमें अप एंड डाउन जो है वो आपकी चेस्ट होती है. ओके, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग इन का मतलब होता है आपको सांस का लेना, और ब्रीदिंग आउट का मतलब होता है सांस का छोड़ना. ओके, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? क्यों हम बोलते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है? बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी ब्रीद इन एंड ब्रीद out. So this is called as respiration. So every organ system has some parts or organs. So respiratory system also has its organs. So कौन से organs होते हैं इनके? Our organs, nose, windpipe and lungs together form our respiratory system. So children, here you can see clearly, this is the respiratory system of human being. Here you can clearly see when we breathe generally through our nose, sometimes through the mouth also. When we feel cold, at that time we usually breathe with our mouth also, but generally we should breathe with our nose, because inside our nose small hair are also present. Those hair and mucus, which is a sticky material secreted from our nose, they can prevent the dust particles to enter in our respiratory system. क्योंकि ये जो respiratory system आपका होता है ये बहुत ही sensitive part होता है. इसमें कोई भी जो dust है या कोई भी germs होते हैं वो enter ना हो. इसकी वजह से क्या होता है, हमारे nose में ही उनको prevent कर लिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है.
ओके। और उसके लिए हमारे नोज में हेयर्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे नोज में एक वाटरी और स्टिकी मटेरियल भी सिक्रीट होता है इसी पर्पस के लिए, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी टाइप का कोई भी ऐसी चीज एंटर ना हो पाए। ओके, सो फर्स्ट organ of our respiratory system is nose, and when we breathe through our nose, then that air enters to the windpipe. ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है विंड पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। सो दिस विंड पाइप रिसीव्स एयर फ्रॉम द नोज, और उसके बाद फिर ये हमारे 2 लंग्स जो होते हैं, ये जो पार्ट हैं आपके, इसमें 2 जो दिए हुए हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स। ओके, ये देखो लिखा है लंग्स। तो ये थर्ड हमारे ऑर्गन हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो मेनली आपको आपकी ये क्लास 4 के अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 ऑर्गन इसमें स्टडी करने हैं, एक नोज, सेकेंड विंड पाइप एंड थर्ड लंग्स। ओके चिल्ड्रन, सो इन द नेक्स्ट क्लास 5th or 6th when you go, you will study in more detail about these all the systems. सो क्या होता है जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करके हमारे नोज से एयर आ जाती है विंड पाइप में, विंड पाइप से फिर एयर कहाँ चली जाती है, इसकी जो विंड पाइप की आगे ब्रांचेस होती हैं वो हमारे लंग्स को एयर सप्लाई करती हैं। ओके, और हमारे दोनों लंग्स में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो इस एयर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देती हैं, और सेपरेट करने के बाद फिर वो हमारी बॉडी को सप्लाई करती हैं। ओके, सो लेट्स सी, द एयर दैट वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज इज रिच इन ऑक्सीजन but has other gases and dust particles too. The dust particles get trapped in the bunch of small hair present inside our nose, and the filtered air goes down the windpipe and reaches our lungs. The lungs filter the air. They absorb the necessary oxygen and throw out the unwanted carbon dioxide that we breathe out through our nose simultaneously. So children, whatever I have explained you here, same thing they have written in this paragraph. उन्होंने सेम वही चीज़ बताई है जो मैंने आपको बताया अभी, कि इसमें क्या होता है जब हम नोज से एयर ब्रीथ करते हैं, तो दैट एयर पासेस थ्रू दिस विंड पाइप एंड अल्टीमेटली रीचेस टू द बोथ द लंग्स, एंड फ्रॉम दीज बोथ द लंग्स, फ्रॉम आवर ब्लड, the carbon dioxide which comes out from our blood and comes to the lungs, that ultimately removes through the same passage, means lungs में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आपके ब्लड में से लंग्स में आएगी, और लंग्स में से फिर विंड पाइप में जाके, और विंड पाइप से देन नोज या माउथ के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन पैसेज which is followed by the carbon dioxide as well as oxygen. ऑक्सीजन ऐसे ही वे से हमारे ब्लड में चली जाती है हमारे लंग्स के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसी वे से वापस होके और हमारे नोज या माउथ के थ्रू बाहर
एलिमिनेट हो जाती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम चिल्ड्रन. So next class, in the next video, we will study about the next system, that is nervous system. Okay, so by the time you revise these two systems which I have explained you today, circulatory and respiratory system. Okay, so Jai Gurudev to all of you.